This is income tax for BCom 2024 to 25, Unit 5, income from capital gains. I am starting problem number 4. Problem number 4, Sri Jai Prakash purchased a sculpture on 25th June 2001 for rupees 2,50,000 and sold it for 11 lakhs. During the previous year, selling expenses 10,800. Calculate capital gain in the following two situations. In two situations, we have to find out the capital gain. He purchased the sculpture in 2001 for 2,50,000 and sold it for 11 lakhs. Situation 1, if he sold to Mr. Ravi Teja of Haryana state. In situation 2, if he sold to Jawaharlal Nehru University, Delhi. So the sculpture, in two situations we have to find out the capital gain. In the first situation, if he sold is to Mr. Teja of Haryana state, and in the second situation, if he sold to Jawaharlal Nehru University of Delhi. So note, you have to write first, artwork such as drawing, painting, sculpture, etc. are taxable. If we purchase and sold, that are taxable. If it is sold to university, now not taxable. If it is sold to any other person, then it is taxable. If it is sold to any university, it is not taxable. This is the note you have to remember while doing this type of problem. In situation 1, if he sold to Mr. Teja of an Haryana state, then we have to find out the capital gain in this way. Particulars amount, consideration received, for how much he has sold, for 11 lakhs. So that is called as consideration received. So 11 lakh we have to take. The transfer expenses is 10,800. It is given in the question. So we have to deduct. We will get net consideration. This is net consideration. You have to write down here 10 lakhs 89,200. From there you have to minus index cost of acquisition. For how much he has purchased that, 2,50,000. He has purchased as sculpture for 2 lakh rupees, 2,50,000 in 2001. So that cost amount we have to take into previous year index number divided by 100. You have to take. Now we are getting 8,70,000. So long term capital gain is 2,19,200. Cost of index is not given for the 2001, no, at the time of purchase. So we have to take it as 100. It's clear? So 2,19,200 we got the long term capital gain in the situation 1. It's clear? Once again I'll repeat it. आर्ट वर्क जो भी रहते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, टैक्सेबल है अगर नॉर्मल पर्सनस को अगर अपन इसको सोल्ड करें तो. अगर यूनिवर्सिटी को सोल्ड करें तो नॉट टैक्सेबल है. दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. अगर सिचुएशन 1 में एक अदर पर्सन को सोल्ड करे, सो वी हैव टू फाइंड द कैपिटल गेन. ऐसा मालूम करना है अपने को कितने में बेचे उन्होंने, पर्टिकुलर अमाउंट ये प्रोफार्मा है. कंसिडरेशन रिसीव कितने में बेचे उन्होंने, 11 लैक्स में बेचे. ठीक है. ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अपने को नेट कंसिडरेशन आ जाता. इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मालूम करना रहता. कॉस्ट ऑफ एसेट जो स्कल्पचर जो भी है 2,50,000 इंटू प्रीवियस इंडेक्स नंबर बाई 2001 का इंडेक्स नंबर. अपने को कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इंडेक्स नंबर को नहीं मेंशन करे तो 100 रहता. ठीक है. 100 लेना है अपने को. यहाँ पर 8,70,000 आता. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,19,200. सिचुएशन 2 में क्या बोले उन्होंने, इट इज सोल्ड टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. सेल ऑफ स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग गवर्नमेंट को या यूनिवर्सिटी को या नेशनल म्यूजियम के लिए सोल्ड करे अगर, तो नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर. हैंड्स प्रॉफिट ऑन सेल शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन. जो भी प्रॉफिट आता वो कैपिटल गेन में कंसिडर्ड नहीं होता. ठीक है ना. दिस पॉइंट यू हैव टू राइट. इफ यू रोट यू विल गेट द फुल मार्क्स इन टू द एग्जाम. नोट डाउन. Sale of sculpture, drawing, painting to government university, national museum is not considered a transfer. Hence, profit sale shall not be considered as capital gain. Now, let's move to problem number 5th. Problem number 5th. Sai Harsha is owing a house and used for residential purpose. The house which was constructed for rupees 1,80,000 40 years ago. On 11 July 1995 he entered in an agreement to sell the house. ठीक है. 1,80,000 में लिए थे उन्होंने वो घर. अब उसको सेल करना चाह रहे उन्होंने टू मिस्टर अब्राहम को 8 लाख रुपीज़ में सोल करना चाह रहे उन्होंने. एंड रिसीव 80,000 एडवांस
एग्रीमेंट हो गया और 80,000 एडवांस भी ले लिए उन्होंने मिस्टर अब्राहम के पास से, ठीक है, श्री हर्षा। दोस्त हु डोंट हैव द प्रॉब्लम नोट डाउन, 1,80,000 कॉस्ट प्राइस है हॉर्स का, ठीक है। 1995 में लियोनो 40 ईयर्स एगो 8 लाख में सोल्ड करना चाह रहे हो, 80,000 एडवांस ले लिए। मिस्टर अब्राहम फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट मिस्टर अब्राहम नहीं पे करे एंड कॉन्सिक्वेंटली द एडवांस अमाउंट फोरफिटेड मीन्स ये जो भी ओनर रहते हैं उन्होंने अमाउंट को अगर रख लिए तो उसको फोरफिटेड बोलते हैं, ठीक है। द हाउस इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फिर प्रीवियस ईयर में 90 लाख में सोल्ड करे उन्होंने वही घर, एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस 1%, सेल के ऊपर 1% निकालना है आपको। FMV एट 1/4/2001 15 लाख FMV दिए अपने को क्वेश्चन में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिए 14 लाख। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 वन मोर फ्लोर भी एडेड करे उसको, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मालूम करना रहता अगर ये दिए तो 6,30,000 लगा के, कॉस्ट इन्फ्लेशन 105 है इम्प्रूवमेंट करे जब का। एंड ड्यूरिंग 2008 और 9 3 lakhs इज स्पेंड फॉर रिनोवेशन एंड पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 137। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है इसमें, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। इफ इनकम फ्रॉम अदर हेड इज 1 लाख रुपीज। इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट यू हैव टू डू द वर्किंग नोट्स। If advance is forfeited before 1/4/2014 it shall be deducted from cost of acquisition। तो यहाँ पर अपने को ईयर देखना है 2014 के ईयर, अगर 14 के बाद में लिए अगर तो अपने को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता, ठीक है। अपन प्रीवियस प्रॉब्लम में देखे थे अपन 2023 था, एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉरफिटेड हुआ सो, ठीक है। जब अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिए थे 75,000 रुपीज़ अमाउंट, यू हैव रिमेंबर। नाउ इन दिस प्रॉब्लम कब इंटर हो रहे हो नो, वन अब्राहम 8 लाख रुपीज़ फॉर 8,000। the house which was constructed in 89 and on 11 July 1995 he entered into agreement 1995, so that means before 1/4/2014, ठीक है। ये ईयर आपको याद रखना है, देखना है। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये अमाउंट जो है सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से अपने को डिडक्ट करना रहता। इफ एडवांस अमाउंट इज फॉरफिटेड आफ्टर अगर 1/4/2014 इट शुड बी टेकन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो 80,000 और एक 80,000 जो आए थे शुड बी डिडक्ट, 80,000 डिडक्ट करना है इनकम फ्रॉम 2015 के बाद जो भी सेल करे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता। Any expenditure incurred renovation painting shall not be considered while calculating long term capital gain के जब पेंटिंग के लिए रिनोवेशन के लिए तो अपने को ये प्रॉब्लम में है ना, तो कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर नहीं होता, इग्नोर करना है वो। एडवांस मनी रिसीव डिडक्ट फ्रॉम FMV, फेयर मार्केट वैल्यू 14 लाख रुपीज़ है, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में, FMV इज गिवन एज एडवांस मनी रिसीव डिडक्ट फ्रॉम FMV 14 lakhs माइनस 18 lakh 13,20,000 FMV एंड स्टैम्प ड्यूटी इज गिवन। सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट जब अपने को देखने का रहता। इनकम फ्रॉम अदर हेड्स 1 लाख रुपीज़ दिए इसमें, और अदर इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन रहता ना अपने को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। तो यहाँ पर अपने को ये प्रॉब्लम में अगर अदर इनकम 1 लाख है तो 2 लाख डेफिशिएंसी बोलते इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डेफिशिएंसी बोलते। 2 लाख रुपीज़ डेफिशिएंसी कैन बी डिडक्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने को प्रॉब्लम करने के बाद अब यहाँ पर अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ 22 lakhs 84,000, सो उसमें से 2 लाख माइनस करना है अपने को, टैक्सेबल LTCG इतना आता, ठीक है। ये कब करना रहता आपको, अगर अदर इनकम 1 लाख रहा, 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन रहा तो 2 लाख अपने को यहाँ एडजस्ट करना रहता। केयरफुली नोट डाउन दिस। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर। कंसिडरेशन रिसीव एट लास्ट कितने में सोल्ड करे हो, 90 lakhs में। 1% एक्सपेंसेस है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो 90,000। नेट कंसिडरेशन कितना हो जाता अपने को 89 लाख 10,000, ठीक है। उसमें से नेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 13 लाख 20,000 जस्ट नाउ इन वर्किंग नोट्स आई शोड यू नो
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को जो FMV, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप देखिए 1,80,000 में लिए उन्होंने, लेकिन 14 लाख जो है सो स्टैम्प ड्यूटी है एंड 15 लाख मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पर अपने को 14 लाख स्टैम्प ड्यूटी में से अपने को माइनस करना है, नॉट FMV, सॉरी, इट इज़ फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, जो भी लीस्ट रहता FMV और स्टैम्प ड्यूटी जब देते तो दोनों को कंपेयर करके अपने को कम जो है वो लेने का है। तो स्टैम्प ड्यूटी कम है तो स्टैम्प ड्यूटी, तो 14 लाख में से आपको 80,000 जो एडवांस लिए थे फर्स्ट एडवांस, क्योंकि वो 1/4/2014 से पहले का है, इसमें से माइनस करना है। It's clear? Once again, you note down, write down here. When stamp duty and FMV is given, we have to take stamp duty as cost of acquisition. ठीक है, 14 lakhs है, 14 lakhs में से आपको एडवांस 80,000 माइनस करना है। It's clear? 13,20,000 you got it. 3 lakh प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर 348 एंड परचेज ऑफ कंसिडरेशन का इंडेक्स नंबर 100 रहे। इट वॉज 100 बिफोर 1999 इट हैज़ परचेज, नो 1995 में 100 रहता। ठीक है, 4,59,3600 वी आर गेटिंग। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 6,33,30,000 उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए करे। ठीक है, उसके लिए भी इंडेक्स अपने को कैलकुलेट करना रहता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करना रहता। 6,30,000 है, इसका इंडेक्स अपने को ऑलरेडी दे दिए 105, प्रीवियस ईयर तो 348 रहता। सो वी आर गेटिंग 2,88,000। आफ्टर डिडक्टिंग दिस टू अमाउंट्स वी आर गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,22,08,400। ठीक है, यूनिट 10 लाख 22,28,400 we are getting long term capital gain. From there you have to minus 2 lakhs. ठीक है, 2 lakhs क्यों माइनस कर रहे हैं अपन ये, क्योंकि उनकी इनकम 1 लाख है, तो वो 2 लाख बेसिक एग्जेम्पशन जो रहता है इनकम टैक्स का, यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। डेफिशिएंसी इनकम टैक्स आया अगर शॉर्ट में भी आपको, तो आप ये आंसर लिखना रहता। ठीक है, वी कैन एडजस्ट इट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपन उसको एडजस्ट कर ले सकते हैं, वो 2 लाख डेफिशिएंसी को। बेसिक जो 3 लाख रहता, 1 लाख इनकम है इनकी, तो 2 लाख जो बच रहे डेफिशिएंसी है, दैट डेफिशिएंसी इसमें से माइनस करे तो अपने को टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,28,400 पे अब उनको टैक्स पे करना है सीसी को। उसमें का फ्लैट 20% रहता ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। सो वी आर गेटिंग 4,05,680। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यू हैव टू ऐड, वी आर गेटिंग 4,219,07। राउंड फिगर करें अपन इसको तो 4,21,910 वी आर गेटिंग द टैक्स लायबिलिटी। इट्स क्लियर विद द फिफ्थ प्रॉब्लम। वंस अगेन आई विल रिपीट इट। ये प्रॉब्लम में अपने को कंसिडरेशन रिसीव 90 लाख्स में सोल्ड करे उन्होंने एसएससी श्री हर्षा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 24 to 25। उसके ऊपर 1% एक्सपेंसेस निकाले अपन 90,000, तो 89 लाख 10,000 नेट कंसिडरेशन आ रहा। इसमें से नेट कंसिडरेशन में से अपने को 2 अमाउंट माइनस करने का रहता, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है एक्चुअली अगर एसेट 1995 में परचेस करें, अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी दिए तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी में लीस्ट जो है वो लेना रहता। तो अपने को प्रॉब्लम में स्टैम्प ड्यूटी 14 लाख है। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख, तो दोनों में से कम जो है वो लेना रहता। वो परचेस करे सो कॉस्ट को तो भूल जाइए। ठीक है, FMV और स्टैम्प ड्यूटी में से लीस्ट लिए लेना 14 लाख। इसमें से 80,000 जो एडवांस है वो एडवांस को 1/4/2014 डेट याद रखना है आपको। उससे पहले अगर कोई एडवांस लिए एसएससी तो यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना रहता आपको, या नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेना रहता। ठीक है ना, तो यहाँ पर 80,000 जो है सो माइनस कर दिए अपन, 13,20,000 का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे। 348 1995 का 100 रहता, सो वी आर गेटिंग 45,93,600 अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 63 लाख उन्होंने स्पेंड करे। प्रीवियस ईयर इंडेक्स, उसका इंडेक्स अपने को 105 क्वेश्चन में दिए।
वी आर गेटिंग 2,88,000. ठीक है, ये दोनों अमाउंट को ऐड करके करे तो 66,81,600 आ रहा अपने को. ये नेट कंसिडरेशन में से माइनस करना है. ठीक है, माइनस करना है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना आ गया. अब ये प्रॉब्लम में अपने को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अपने को 1 लाख रुपीज़ दिए. एक्चुअली बेसिक एग्जाम्पशन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में क्या रहता अपने को 3 लाख रुपीज़ रहता. ठीक है, तो 2 लाख रुपीज़ अपन डेफिशिएंसी बोल के रहता, वो एडजस्ट कर ले सकते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से. तो यहाँ पर 2,22,800 अपने को आया ना. यहाँ पर 28,400 22 lakhs 28,400 आया. तो ये 22 lakhs में से वो डेफिशिएंसी जो आ रही माइनस करना है. ऐसा कब करना रहता आपको, जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 3 लाख से कम दिए अगर तो. इट्स क्लियर नो. सो 22 lakhs 28,400 में से 2 lakhs डेफिशिएंसी के अपन माइनस कर दिए, तो 28,400 का जब टैक्स पे करना है एसएससी को, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ्लैट 20% रहता. 4,05,680 पे करना है उनको. इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी रहता सबके लिए. सो 1622.72 आ रहा. ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद 4,21,907 है. इसको राउंड फिगर कर दिए तो अपने को 910 हो जाता. लेट्स चेक द आंसर. प्रॉब्लम नंबर 5th. Problem number 5th, we are got the answer 4,21,910. It's clear no. Taxable income is 22,28,400. That is this answer we got. Long term capital gain. इसमें से deficiency को minus करना है आपको. It's clear no. If income from other heads, normal income is less than the basic exemption 3 lakh, deficiency income 2 lakhs can be adjusted. It has given in the answer also. That's all. That only I have explained no. Are you clear with that? Even though if you have any doubt, you can ask me in the comments.